अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज जो सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये है हमारे पास पेज नंबर 5 पर। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हमारे पास हैं, ये ग्रासलैंड्स होती हैं, these are usually found between the deserts and the tropical forest. They are warm throughout the year but have only a small amount of rain, 500 to 1500 millimeter, which falls between April and September in the northern hemisphere. They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season. In Africa, such grasslands are home to many game animals, buffaloes, zebras, giraffes, elephants, rhinos, lions and tigers, and have a flourishing tourist industry with hundreds of thousands of people going on safaris to watch the animals. Pakistan once had a lot of this type of climate and vegetation, but now almost none is left. The land has been cleared, and with extra water from irrigation, all kinds of crops are grown on it. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हमारे पास है, ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मीन्स जंगलात और डेजर्ट के दरमियान में। ये जो हमारे पास है वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट बहुत कम अमाउंट में हमारे पास जो है यहाँ पे रेन होती है, जो कितनी है 500 से 1500 मिलीमीटर। किस सीज़न में होती है ये रेन? अप्रैल से सितंबर के दरमियान में। कौन से रीजन में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दे हैव स्कैटर्ड। अब इन ग्रासलैंड में होता क्या है? ट्रीज़ होते हैं, बुशेस और लॉन्ग ग्रास होती है, जो कि क्या होता है खुश्की के सीज़न में डाई हो जाती है। इन अफ्रीका में हमारे पास इस तरह की ग्रासलैंड्स काफ़ी हैं, जहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बफेलोज़, ज़ेब्रा हो गए, जिराफ, हाथी, शेर, टाइगर वगैरह। और काफ़ी जो हमारे पास उनकी फ्लरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री है, बहुत से हमारे पास टूरिस्ट जो हैं जो इस तरह के इलाके देखने जाते हैं। पाकिस्तान के पास भी इस तरह के ट्रॉपिकल आइलैंड थे, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से, जो कि हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से ये ग्रासलैंड जो हैं ये डाई हो चुके हैं। अब उन जगहों पर क्या हो रहा है, उसे क्लियर करके वहाँ पर हम इरिगेशन कर रहे हैं, मीन्स फसलें उगा रहे हैं और अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। In the Muslim world, these are found in Central Africa along the equator and in Southeast Asia. There is heavy rain, 1800 to 2500 millimeter or more, and the temperature remains between 20 to 30 degrees centigrade all year. Naturally, there is a thick forest of tall trees with a crown of leaves high up. Below it is semi-darkness with giant creepers twining up the tree trunks so reach the sunlight above. The main stems of the some creepers can be as much as 30 to 40 centimeter in diameter. The main forms of life found here are birds and monkeys in the canopy, the leaves at the top, and snakes, lizards and insects below. Much of the forest is very valuable for timber such as teak and other hardwoods. Where these have been cut down and the forest cleared, sugarcane, cocoa, rubber, mangoes, pineapples and other tropical fruits are grown. Because of the heat and the moist atmosphere, the rainforests are generally unhealthy with many diseases that affect humans and animals. Many of these, such as malaria, are carried by insects. However, the rainforests are very important, both of their plants and their replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. Although not in the Muslim world, the Great Amazon Forest in South Africa is believed to supply half of the world atmosphere with oxygen.
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है हमारे पास, मुस्लिम वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल अफ्रीका, इक्वेटर के पास और साउथ ईस्ट एशिया। देयर इज़ हैवी रेन, वहाँ पर जो रेन है वो हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रासलैंड। इसके ऊपर जो हमने टॉपिक कवर किया है, कितनी रेन होती है 1800 से 2500 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा। और टेम्परेचर जो वहाँ का है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ऑल ईयर, मीन्स वहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर जो है हमारे पास रहता है। नेचुरली जो कुदरती हमारे पास वहाँ पर थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज़, वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं। जो क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप, जो ऊपर जो हैं वो लीव्स होते हैं काफ़ी, और नीचे सिर्फ हमारे पास उसकी दरख्त की जो है वो शाख आ रही होती है। नीचे जो हमारे पास है सेमी डार्कनेस होती है, मीन्स अंधेरा होता है, रोशनी नहीं आ पाती, इतने पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं टॉप पर कि वो सनलाइट को पास नहीं होने देते। और जो हमारे पास वहाँ पर स्मॉल कीड़े मकोड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं सनलाइट लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इन ट्रीज़ पर ट्रैवल करके टॉप पर जाने की कोशिश करते हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यहाँ पर जो लाइफ फाउंड है वो हमारे पास मोस्टली क्या है, परिंदों की और मंकीज़ की इन द कैनोपी। कैनोपी कहते हैं हम वो लीव्स जो किसी भी ट्री के टॉप पर होते हैं, उसे हम कहते हैं कैनोपी। और सांप वगैरह और छिपकली और दूसरे कीड़े मकोड़े जो हैं वो नीचे पाए जाते हैं। टॉप पर हमारे पास दो एनिमल्स हैं, कौन से, बर्ड्स और मंकीज़, और बेस में हमारे पास ये तमाम एनिमल्स हैं। ये जो फॉरेस्ट है हमारे पास ये बहुत वैल्यूएबल है, किसके लिए, टिम्बर के लिए। इसे हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शुगर केन के, गन्ने के दरख्त हैं, कोकोआ जिससे हम चॉकलेट वगैरह बनाते हैं, रबर हो गई, मैंगोज़, ये तमाम हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द हीट की वजह से क्या होता है, रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास अनहेल्दी है वहाँ पर, मींस हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो वहाँ पर पैदा होते हैं जो कि इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह हैं। उन डिजीज़ में सबसे जो कॉमन हमारे पास है वो है मलेरिया। हाउएवर रेन फॉरेस्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और रिप्लेनिशिंग द एयर, ऑक्सीजन को क्लियर करने के लिए, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसे क्लियर करने के लिए हमारे पास ये फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब इससे रिलेटेड जो वर्कशीट आएगी उसमें हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगा कि हमारे पास पाकिस्तान में या वर्ल्ड में कितने फॉरेस्ट हैं, उनके नाम लिखें, आप एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ पे हैं। थैंक यू।